এই ব্লকে ত্রিপুরার নব এখন এই ধর্মনগর বললে ভুল হবে, উত্তর ত্রিপুরা বললে ভুল হবে। সারা ত্রিপুরার একজন লড়াকু নেতা, আপনাদের স্নেহধন্য যিনি মন্ত্রী ছিলেন, যিনি এআইসিসি পর্যন্ত যিনি সেক্রেটারি ছিলেন, মুসলমান ভক্ত প্রিয়, আপনাদের দোয়া এবং আশীর্বাদ ধন্য আমার অনুজ শ্রীরাম মহোদয়। এখানে অনেক নেতা আছেন, কারণ আমাদের সময় কম। সমস্ত নেতৃত্ব এখানে যারা আছেন, গুরুজনেরা আছেন, আব্বা জানেরা আছেন, আম্মা জানেরা আছেন, ভাই জানেরা আছেন, বোন জানেরা আছেন, ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলবো, বেশি বলবো না। এখানে আরেকজন এসেছিল, আমাকে বলেছিল এখানে সভা হয়েছিল, এটা ঠিক। টিলাবাজারের সভা সবাই হয়ে থাকে, টিলাবাজারের তুলনা অনেক জায়গায় হয় না, আমি এখানে বলি। কিন্তু বন্ধু, এটা ঠিক, উত্তর প্রবেশ করার আগে রাজনীতিকবিদরা বিরোধী সেনার কথা মনে রাখে। একটা ভুল হয়ে গেছে, আমার ছোট ভাই এই এলাকার গড়া লড়াকু এই ডিস্ট্রিক্ট এলাকার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আমার স্নেহের বর্ধন জোহানকে আপনারা হাত চাইছেন। আমি কিন্তু এই ধরনের নেতা, আমি 50 বছর রাজনীতি করছি, বিরোধীদের সঙ্গে প্রায় 48 বছর আমরা বেশি ছোট বড় নয়, আমি 3 বছরের বড় আছি। কিন্তু বজ্রুজ্জামান যেভাবে নিঃশ্বাস সঙ্গে ডেডিকেশনের সঙ্গে সে যেটা রাজনীতি করছে, অনেকে তাকে সালাম জানানো উচিত, তাকে ধন্যবাদ জানানো। তাই বলুন, কথা আপনারা সবাই জানেন, সবাই বোঝেন, কিন্তু একটি কথা যে 18 তারিখ কি করব আপনার কি করব। আজ থেকে 13 মাস আগে, এই যে 12 মাস 13 মাস হলো আপনাদের এই সাম্প্রদায়িক জুমলাবাজের একটা সরকার হয়েছে। আন্তর্জাতিক মস্তান দেখেছে, আন্তর্জাতিক গুণ্ড দেখেছেন, এখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হল আন্তর্জাতিক জুমলা। ত্রিপুরাতে যিনি হয়েছেন ডেপুটি ডাইরেক্টর জুমলা। এই বিপ্লব বাবু আমার এখান থেকে পাশ করেছে, আমি 3 বার বিধায়ক ছিলাম, সভাপতি ছিলাম, সিএলপি বিধায়ক ছিলাম, কিন্তু ফ্যাক্ট রিমেইন, এটা সত্য। এইবার মানুষ ভেবেছিল যে বামফ্রন্ট 25 বছরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়, বঞ্চনা, শ্রমিক বঞ্চনা, কর্মচারী বঞ্চনা, বিরোধী বাবু থাকা সত্ত্বেও আপনারা, সবাইকে বলছি না, আপনারা পরিবর্তন চেয়েছিলেন। ওই আপনার হেলিকপ্টার লোককে মুখ্যমন্ত্রী বানানোর জন্য ভোট দিয়েছিলেন, প্যারাসুট মুখ্যমন্ত্রী বলে। আমি ধন্যবাদ জানাই, কারণ বামফ্রন্ট থেকে তো আপনারা বিদায় করেছেন, কিন্তু ইনশাআল্লাহ যারা জাতিতে জাতিতে বিভেদ করে, যারা আমি কি খাবো সেটাতে বাধা দেয়, যারা আমি কি পরব, যারা বলছে আমাদের নিজেদের পোশাক ছেড়ে গেরুয়া করতে হবে, এর প্রতিবাদে এবার কিন্তু যুদ্ধ। সাচার কমিশন ভুলে গেছে, মাইনরিটি এবং
মেজরিটি একসঙ্গে থাকবে, এটা হলো আমাদের ভারতবর্ষ। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান। আমার কাছে লজ্জা হচ্ছে এই যে পশ্চিম ত্রিপুরার ভোট হয়েছে, প্রতাপ করে মাইনরিটি মুসলমান সম্প্রদায়ের দিয়ে বলেছে বিজেপির গুন্ডারা কি এটা মুসলমানের ভোট নয়, হিন্দুদের আপনারা যাবেন না। আজকে শুনেছি, আমি বলতে চাই এখানকার ভারতবর্ষ একটা সংবিধান আছে, আমার গাড়িতে রক্ত আছে, আমার বন্ধুদের গায়ে সেই রক্ত বলছে। আমাদের রক্তের যারা বৈষম্য করবে তাদের কিন্তু আপনারা ক্ষমা করবেন না। আমি চাই হঠাৎ কেন বিরোধী বাবুর মুখে শুনলাম, আপনাদের শুনলাম, অনেকে বলছে 1 বছর 1 মাস আগে ওই বিপ্লবের কোম্পানি ওই ডেপুটি ডাইরেক্টর ওরা কি বলেছিল, वोट दीजिए, घर घर में नौकरी हो जाएगा। अच्छा বিপ্লব বাবু একটা প্রবলেম হলো কি জানেন, যারা বিজেপি বন্ধুরা আপনারা শুনুন, মন পরিবর্তন করার এখনো সময় আছে। ত্রিপুরাকে বাঁচান, ত্রিপুরাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে বিজেপি। আমার পাড়া থেকে উনি তো ছিলেন উদয়পুরে, স্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন, তারপরে হঠাৎ চলে গেলেন। অবশ্য জন্মটা ভারতবর্ষ না পাকিস্তান এখন ঠিক হয়নি, ওনার মা বলেন পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান, উনি বলেন ভারতবর্ষ, তাহলে তো চলে যেত। তাই উনি গেলেন, 22 বছর ছিলেন। হঠাৎ 2016 সালে পেগাসুস সভাপতি হয়ে গেলেন বিজেপি হয়ে যখন এলেন, তখন কিন্তু বিজেপির অফিসগুলি চুরমার হয়ে গেল, সব চেয়ার ভেঙে গেল। আরেকজন পুরনো বিজেপি। তারপরে 2 বছর 16-17-18 উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন। আপনারা পরিবর্তন, আপনারা কিন্তু বিজেপিকে কেউ ভোট পেয়েছেন, পরিবর্তন থেকে সামলুন। সবাই বলছে আমরা ভুল করেছিলাম, ইনশাআল্লাহ এবার হ্যাঁ এই কাফেরদের কোনো ভোট দেব না, কাফেরদের কোনো ভোট দেব না। आज मिनिस्ट्री का काज हो जाएगा। आज के এখানে বিরোধী আছেন, আপনারা আছেন, একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে, কি বলেছিল বিপ্লবীরা, আপনার মিস করে আমরা পরের দিন থেকে চাকরি বাড়িতে পৌঁছি। বিসমিল্লাহ একটা দেন, বিসমিল্লাহ বলো, তাই না? ওরা এখন, আমি আজকে বেশি সময় লাগবে না, সময় কম, একদিন আমাদের সবার দেশে সভা, আমি তো অনেকবার এসেছি, এখানে এসেছি, বিরোধীদের অনেক মিটিং এসেছি। এখন বক্তব্য তাইলে আপনারা যা যা বলেছিলেন, ঘর ঘর में नौकरी, ঠিক আছে, স্কুটি, এই সেই বেকার ভাতা, তারপরে কর্মচারীদের আকাশে উঠিয়ে দিলে, চন্দ্রলোকে বাড়ি করে দেবে, সব বলেছিলেন। 1 বছর 1 মাস পরে আপনারা কি কি করেছেন বলা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিজেপি সব অফিসে এখন ওই গুলি গাছের গুলি ছিলেন তো, আপনারা ভালো ছিলেন, আজকে ওরা গুলি, আজকে মানে গাছ গাছ গুলি, এগুলি জমা করছে। একজন মন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসে, এখন বিজেপির অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে, কারণ মন্ত্রিসভায় তো 3টা পদ খালি আছে, কখন মিলে মরিচিকা মতো এটি মন্ত্রীগুলো বললেন। কংগ্রেস যারা ভোট দেবে অবশ্যই আগরতলা বলেছি, কেন বললে ওকে খবর দেওয়া হতো, এখানে আমি জানি এখানকার লোকের, কারণ কংগ্রেসের গর্ব, এই চিরাবাজার বিরোধীদের গর্ব, এই চিরাবাজার আমাদের বন্ধুদের গর্ব, এই চিরাবাজার সকলের গর্ব। এখানে বলবো, এখানে তো খবর হয়ে গেছে, পাবেন না, আপনারা খবরই গিয়েছে। আমি যে কথা কি কারণ আছে
এই গায়করা মূলিবাসের গুড়ি পার্টি অফিসে জমানো, একজন বলছে পা ভেঙে দেবে, একজন বলছে হসপিটালে নিয়ে যাবে, আর অমরপুরে বলেছে বিকলাঙ্গ সার্টিফিকেট সই করে দেবো। মানে বিকলাঙ্গকে ভাতা পাবে। তাই না? আমি ভাইজানদের বলবো, আব্বাজানদের বলবো, আম্মাজানদের বলবো, কি কারণ ছিল 1 বছর পরে এই মানে মূলিবাসের গুলি করার জন্য, মারার জন্য? কি করবে? মানে কিছুই করে তারা জুমলা কথাটা কিন্তু কংগ্রেসের কথা। এই যে নরেন্দ্র মোদী একটা বিশ্ববিখ্যাত জুমলা, ও আজ থেকে 5 বছর আগে নরেন্দ্র মোদী কি বলেছিল, আপনারা হিন্দি কিছু নিশ্চয়ই জানেন, क्या अच्छा दिन आएगा, महंगाई कमेगा, दाम कमे जाए, बाहर से काला धन ले आएगा, हर एक आदमी का बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया घुस जाएगा, मैंने 15 लाख টাকা ঘুষে যাবে। আমি এখনো যারা বিজেপি করছে 15 পয়সা দুটো ঢুকেছে কিনা, নির্বাচন থেকে সরে যাব, কুমারী প্রজ্ঞাতে পর্বকে উল্টো করে নেব। আপনারা আর যদি না ঢুকে থাকে তাহলে এখানে ইনশাআল্লাহ একটি ভোটও আপনারা বিজেপিকে বা সিপিএমকে দেবেন। আমি যে কথাটা বলতে চাই, কি ঘটনা হলো 1 বছর 1 মাস পরে বিপ্লব বাবু বলেছিলেন, এক বাড়িতে গেলেন 80 বছরের বৃদ্ধ, दादू क्या करता है? मेरा सुना है तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको भाता क्या कितना मिलता है? मैंने भाता कौन है? 700 सिर्फ 700। नहीं दादू 80 বছরের বৃদ্ধ, ওকে কম করছে। नहीं मैं तो 2000 रुपया कर देगा मुख्यमंत्री होने का बाद, वो चांद पर स्प्रिंगের মতো বসে গেল। इस ITF কি 2000 টাকা আপনাদের ভাতা দেবে বলছে, আপনারা জানেন। ম্যানুফ্যাক্সার ছিল এই যে ম্যানুফ্যাক্সার মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ধোঁকাবাজ বিশ্ববাদ মালিগুলি। এখন আপনারা বলুন তো 2000 টাকা ভাতা পেয়েছেন আর দেবে না, কারণ 2 মাস পরে বিপ্লব বাবু আমি করতে আসছি বলতে একটা হিন্দি গান আমার, আমি কিছু জানছি, বিপ্লব বাবু কিন্তু 2 মাস পরে এটা তো ঠিক নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রধান প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, এটা ঠিক। তাই এখানকার মন্ত্রিসভাটা আপনারা এখানে শিক্ষিত করে রাখেন। আগ্নেয়গুলি কেন তো নিচে আগুন উপরে মাটি, আগ্নেয়গুলি কখন যে অগ্নি উৎপাদন হয়ে বিপ্লব বাবু সহ ধ্বংস হয়ে যায়। তাই বলছি, তাই ভাইজানদের বলছি, আব্বাজানদের বলছি, বিপ্লব বাবু কিন্তু সময় হয়ে গেছে। মাস মে মাসের 23 পরে গেল। अच्छा तो हम चलते और दिल्ली বিপ্লব বাবু আর আপনাদের যারা যারা এখন কিছু কিছু বিজেপি তত্ত্ব নিয়ে করছেন, আপনারা বললেন परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। বিপ্লব বাবু কি করেছে জানা নেই, কারণ মানবে তো সবাই গুলিতে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক। ভাইয়ের ভর হোক क्या साल में 2 करोड़ नौकरी देवा जाएगा। 14 साल বছরে 3 কোটি, তাহলে 5 বছর হয়েছে কয় কোটি? 10 কোটি। এখানে একজন এই এলাকা তো 8টা বিধানসভা আছে কংগ্রেসের, কৈলাসহর আছে, নর্থ ত্রিপুরা আছে, একটি চাকরি হয়নি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাই না? কেমন আমরা প্রতি শান্তি, এই জুমলা কথাটা কিন্তু আমাদের না। এই যে গুজরাটে দাঙ্গা হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন, এই দাঙ্গা রক্তে লাল হয়েছিল নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহ। অমিত শাহ হোম মিনিস্টার, জুমলা বিশ্ববিখ্যাত জুমলা বক্তা নরেন্দ্র মোদী। কি করেছিল? এই
হবে আমাদের? যদি সহ্য করেন, বিজেপিকে করছেন, আমার কিছু নাই, আপত্তি নাই, কিন্তু ইনশাআল্লাহ যাচ্ছে একজন বন্ধু হিসেবে, ভাই হিসেবে একটি ভোটও যাতে মাইনরিটি যাতে বিজেপির গদ্য চিহ্নে না যায়, এটা বলে গেলাম। আমি চাই কয়েকদিন আগে আমাদের বিপ্লব বলেছেন, কি বলেছেন? গুন্ডা বদমাস সারা সবাই বিজেপিকে স্বাগত, তার অর্থ কিন্তু বিলোপন, তাই না? অফিসে গুন্ডা বদমাইশে ভরা, আর দরকার না রে। ওনার যদি গুন্ডা বদমাস না থাকে তাহলে এত সন্ত্রাস করছে কেন? কি দরকার ছিল? কাম কি আর ভয় দিয়ে কাম নেই? একটা কথা আছে, আমিও গ্রামের ছেলে, বিরোধিয়া কয় ভাত না দিয়া পরিবারের গোসাই খাওয়া দিও না, পিটাই বলে, এটা কি হতে পারে বলুন? তাই বলছে। উনি নোটবন্দি করলেন, বেশি সময় না, মহারাজা বললেন নোটবন্দি করবেন। কি বলেছিলেন? নোটবন্দি করার পরে হলো কালো টাকা সব ধরা পড়ে যাবে, জাল টাকা ধরা পড়ে যাবে, আর জঙ্গিদের তহবিলটা বন্ধ হবে, জঙ্গিপনা বন্ধ। আপনারা বলুন কাশ্মীর ঢাল ঢাল আগুনের গোলা কেন হবে? সংবিধানের 370 দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য। ওরা ভারতবর্ষের লোক, ভারতবর্ষের পৃথিবীর মধ্যে বাস্ত হবে, পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গ বলে, কাশ্মীর স্বর্গ বলে, ওটা আমাদের সঙ্গে থাকবে, ওরা সুবিধা পাবে। আপনার কি অবস্থা? আপনার কেন অসুবিধা হলো বলুন? তাই বলি, আমি আপনাদের বলছি, কালো টাকা এসেছে, জঙ্গির তৎপরতা কি হয়েছে? আমি আপনাদের সামনে যে কথাটা বলছি, যে কালো টাকা 99.3 এখানে শিক্ষিত লোকরা আছেন, মায়েরা বলে আছেন, আব্বা জানরা আছেন, ভাই জানরা আছেন, 99.3% জমা হয়ে গেছে। আর মাত্র 10,720 কোটি টাকা বাংলাদেশ, নেপাল, আমাদের পাশাপাশি রাষ্ট্রগুলো কালো টাকা কাহা দিয়ে ওই দিয়েছে। ওনার ওই যে উড়িষ্যার ছেলে জয় শাহ ব্যবসা করেন, আমার বাবা ছোট্ট ব্যবসা করত, 50,000 টাকা পুঁজি, 2 বছরে 18 কোটি, 18 কোটি। উড়িষ্যার একটা ব্যাংক আছে, উনি আগের থেকে দালালি করে অভ্যাস, এই উড়িষ্যা ওই ব্যাংকে ওই যে ডিক্লারেশনে পরে 750 কোটি টাকা জমা করেছে, এই কৈলাসহরের মতন একটা জায়গা। তাহলে টাকাগুলি করতে গেলে আপনার বলুন, আপনাদের কাছে আমার কথা বলুন, এখানে একটা নজির আছে, এখানে একটা ইতিহাস আছে। আমি বলবো ভদ্রলোক আমাকে ঘড়ি দেখাচ্ছে, ঠিকই আছে, আপনার ঘড়িটা ওই বিপ্লবকে দেখান, মোদীকে দেখান, তাদের যাওয়ার সময়। তাই বলছে মহারাজার কথা শুনে খুব ভালো বলে, ভালো লোক, মনটা ভালো, তরুণ তুর্কি ভালো লোক, দায়িত্ব নিয়েছে, আমরাও দিয়েছি রাজকুমারীকে। ওই বিপ্লব বাবু সিপিএম এর মতন বাড়ি হবে না, টাকা ব্যয় হবে, এই এলাকার মঙ্গল হবে, আমি বলি। তাই বলছি আপনাদের কাছে অনুরোধ করি যে এই যে বিপ্লব বাবুকে অত্যাচার মুক্ত হবে। আমি আগে বলেছি আমার বিশ্বাস এখানে মস্তানি করতে আসবে না, কিন্তু পাশে কি করেছে তাই তো সিপিএম কে কি বলতে জানেন? ওনাদেরকে এই কি আছে জিতেন চৌধুরী
দেখেছেন 5টি বছর? দেখবেন না। এরা ইঁদুরের মতো গর্ত থেকে উঠে এমন এমন করে। কেন বলতে দেয়? সিপিএম তো সারা ভারতবর্ষে, পশ্চিমবাংলা নেই, ত্রিপুরা নেই, আর কেরলাতে 2-3টা সিট পেতে পারে। সেই ডুবু নৌকার মধ্যে আপনারা কি যাবেন? যাবেন? আর সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে কি সমর্থন করা যায়? তাইলে কংগ্রেসকে আশীর্বাদ করুন। এখানে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সাচার কমিশন করে গন্ডায় আমরা আদায় করে এই এলাকার মধ্যে আমরা দেবো। আমি বলে দিচ্ছি, আসুন বন্ধু, আসুন ভাই, আসুন আপনারা, আসুন ভাইজান, সবাই মিলে এই মাটিতে ভোটের মাধ্যমে বিজেপিকে কবর দিন, রাজকুমারী প্রজ্ঞাকে দিল্লি পাঠান। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। গোপালদার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আমরা আজকে এই জনসভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। यहाँ में मंच में बहुत लोग हैं, सबका नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबको आदर करके बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ में एक मौका दिया है कैलाश शहर में आकर कुछ बोलने का। बदरुज्जमान एक बहुत ही अद्भुत कांग्रेस का वर्कर है, उन्होंने सब चीज कह दिया, बीजेपी लाओ, देश बचाओ, ये सब कह दिया। एक चीज वो भूल चुका, एक चीज नहीं कहा। बदरुज्जमान जी आप एक चीज भूल चुके हैं, एक चीज नहीं किया, चौकीदार। कैलाश शहर को क्या हो गया बोले? आज क्या पेट में कुछ खाना नहीं गया क्या? चौकीदार, हाँ इसको कहते हैं एक जोश, एक जज्बा। मैं यहां आया हूं, मुझसे पहले बहुत लीडर्स ने अपना वक्तव्य रखा है। मैं आपको क्या बोलूं, मोदी को मुझसे ज्यादा आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन त्रिपुरा में अपना मुख्यमंत्री ऐसा है कि मोदी भी उसे जान नहीं सका जब तक वो मुख्यमंत्री बना। ये सरकार ने 1 साल में जो खिचड़ी बनाई है, उससे अगर हमें राहत चाहिए तो जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, मैं आपको लिखकर बोल देता हूं, यूपी में बीजेपी हारेगी, आदित्यनाथ वापस अपने मठ में जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार को महसूस होगा कि उसने जिंदगी में इतना बड़ा भूल किया। दिल्ली में बीजेपी उठ नहीं पाएगी, मध्य प्रदेश में हारेगी, राजस्थान में हारेगी। और एक बात गारंटीड है, सर्वे रिपोर्ट कागज सब बता रहा है कि 2019 में नरेंद्र मोदी वापस गुजरात जाने वाले हैं और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री। लेकिन ये नया बात तो है नहीं, ये तो सब जानते हैं, दिल के अंदर सब है। लेकिन क्या है कि अपने जो त्रिपुरा का जो सरकार है, 1 साल में क्या कला किया है उन्होंने, आपको समझना चाहिए। मैं जिस परिवार से आता हूं, उस परिवार में हमेशा हर धर्म, हर मजहब, हर भाषा को आदर दिया है। हमारे समय हमने बंगाली भाषा को प्रमोट किया। हम थे इंडिजिनस पीपल्स, लेकिन हमने बंगाली भाषा को प्रमोट किया। आज से कई 100 साल पहले, 400 साल पहले मेरे पूर्वज ने शुजा के लिए एक मस्जिद बनाया,
आज से 400 साल पहले एक त्रिपुरा का राजा एक मुसलमान के शहजादे के लिए एक मस्जिद बना सकता था। आज हमारे राजनेताओं में क्या प्रॉब्लम है कि उनका दिल इतना छोटा हो चुका है, ये आपको समझना होगा। त्रिपुरा का इतिहास अलग है, त्रिपुरा का कल्चर अलग है। ये लोग जो बाहर से आते हैं कहते हैं कि वो भूमि पुत्र है, लेकिन वो समझते नहीं कि यहां में हमारा जज्बा, हमारा सोच क्या है। आप लोग यहां में इकट्ठे हुए हैं, मैं जानता हूं इसके बाद और एक प्रचार होगा, टेलीविजन में प्रचार होगा। प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा ने यहां में माइनॉरिटीज को सम्मेलन में कुछ कहा, मोदी जी के खिलाफ कहा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, माइनॉरिटीज को आप अलग रख दीजिए। मैं हिंदू हूं, हिंदुस्तान में कई हिंदू हैं, मोदी जी को कोई पसंद नहीं करता है। सिर्फ आपके ऊपर एक उन्होंने आपको टारगेट किया है, कहा है इनको देखो। मैं कहता हूं आप अपने अंदर देखो, कितनी गंदगी है आपके अंदर कि आपने इंसान को इंसान से अलग किया, धर्म, जाति और भाषा के रूप में। मैं कहता हूं सलाम, सलाम अलैकुम। कोई कहता है नमस्ते, कोई कहता है नमस्कार, लेकिन कोई कहता है हेलो। लेकिन आपने अगर दिल से किसी को सलाम नहीं किया, आपने अगर किसी को दिल से चाहा नहीं है, तो आप भाषण देते जाओ, अजान के समय 2 मिनट चुप हो जाओ। लेकिन राजनीति भाषण से नहीं होता है, राजनीति होता है जब राजा का नीति दिल से दिल मिलकर सबके साथ, समाज के साथ होता है। और मैं क्या बोलूं, आप सब्र कर रहे हैं 5 साल से, सब्र कर रहे हैं ना कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो सब्र था कि कब जाएगा ये सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। हमने सब्र तो किया है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के 2 घूट पसंद हैं, एक गुस्से का, एक सब्र का। वो सब्र का समय 2019 में आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। ये परिवार जिसके ऊपर वो कहते हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, आज भी उज्जैन का पैलेस में, राजमहल में हफ्ते में 2 बार हमारे घर में नमाज पढ़ा जाता है। क्योंकि जो राजा हो, जिसका शासन हो, वो राजा का धर्म पब्लिक के लिए, समाज के लिए होता है, किसी जाति के लिए नहीं। ये बात हमारी बीजेपी की सरकार समझ नहीं सकती है, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने कभी शासन किया ही नहीं। उनका मतलब है बांटो, ट्राइबल को, त्रिपुरा को बंगाली हिंदू से लड़ाओ, चाकमा को किसी और से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ। हम चाहते हैं कि ये त्रिपुरा राज्य, जहां में हम सब एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां में हम सब शांतिपूर्वक रह रहे हैं, हम उनको एक जवाब देना चाहते हैं कि ये है त्रिपुरा, नागपुर नहीं है। हम आपको जवाब दें और ऐसा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि आप भी समझेंगे। त्रिपुरा में हमारे समाज को छेड़िए मत, मत छेड़िए। यहां में हमारे विप्लव जी आए, अभी गोपाल बाबू ने बहुत अच्छा गाना गाया। गोपाल बाबू का इतना अच्छा सुर है, ये मुझे भी मालूम नहीं था। गोपाल बाबू, आप तो बहुत कलाकार और रंगीन इंसान भी हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत कलाकार इंसान है, लंबे हैं और गाते भी हैं। क्या गाते हैं वो गाना उनका?
दिल दिया है जान भी देंगे ए त्रिपुरा तेरे लिए। मैं बिप्लब बाबू को बोलना चाहता हूं, बिप्लब बाबू, मुझे आपका दिल नहीं चाहिए। अल्लाह करे कि आपका उम्र भी बहुत लंबा रहे, आपका जान भी नहीं चाहिए। नौकरी दे दीजिए, वो आपने वादा किया था वही काफी रहेगा। बहुत चीज कहा है। ये अपने बिप्लब बाबू ने कहा था कि 1 साल पहले, इसको आप पहचानते हैं, इसको कहते हैं स्मार्टफोन। नरेंद्र मोदी जी अगरतला आए अस्तबल में और उन्होंने घोषणा किया कि भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आपका नाम मियां साहब पकड़ लेंगे वो आपको। अब मियां चलिए, मैंने आपको आपके ऊपर विश्वास किया। हादिस मियां चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा था कि रेगा 340 रुपए। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में 90% जो उन्होंने वादा किया वो हो चुका है। तो रेगा 340 मिला है आपको? नहीं भाई, अब मुख्यमंत्री कह रहा है। आपने सुना 18 के इलेक्शन में और कहा मित्रों, भाइयों बहनों, 18 पे कमीशन लागू होगा। हुआ। और तब ये कहते हैं कि कांग्रेस जो आज से 1 साल पहले सिवाय वीरजीत सिन्हा जी के पूरे त्रिपुरा में खत्म हो चुका था, यहां में वीरजीत सिन्हा जी थे, इतना तो मानना पड़ेगा। कांग्रेस जो 1 साल पहले पूरा इस राज्य में खत्म हो चुका था, उनको ऑक्सीजन कैसे मिल गया? ये झूठ बोलकर ऑक्सीजन नहीं मिलता उनको। ये ऑक्सीजन मिलता है जब खुद आप अपने गोल में ही गोल कर देते हैं, एक विकेट हो गया ये सब। लेकिन हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे। हम आपको एक बात बताने आए हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपके पॉकेट में 15 लाख रुपए होगा। हम ये बताने आए हैं कि कैलाश शहर में हमारा एक एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट एक समय कलकत्ता और कैलाश शहर में एक फ्लाइट होता था। यूपीए की सरकार आएगी तो हम पूरा चेष्टा करेंगे कि कैलाश शहर से कलकत्ता का एक विमान यहां से जाए। देखिए, सब लोग आकर बोलते हैं दिल्ली में मैंने ये किया, मोदी जी आके बोलते हैं कि मारो मैंने ये किया। हम वो नहीं बोलने वाले हैं। यहां में मोदी जी आके बोल रहे थे हीरा हीरा हीरा। मैं आपको डायरेक्टली कहना चाहता हूं कि कैलाश शहर में सेकेंड रेल लाइन होना चाहिए। हम बाहर की बात नहीं करने वाले, हम त्रिपुरा के बारे में बात करेंगे, कैलाश शहर के बारे में बात करेंगे। यहां में जल का, पानी का एक प्रॉब्लम समस्या है। यहां में पानी का, पीने का एक पोर्टेबल वाटर प्लांट होना चाहिए। ये यूपीए की सरकार लाएगी। अच्छा, तो मैं यहां आ रहा था, यहां मैंने बॉर्डर देखा, बॉर्डर हाट सैंक्शन हुआ था। आजकल कोई बात नहीं करता। आजकल सिर्फ सरदार पटेल का मूर्ति बनाओ, कहीं में कुछ और करो, वो ऊपर से सैटेलाइट से कुछ करो। यहां में बॉर्डर हाट का सैंक्शन हुआ था तो यूपीए के शासन में। आज 5 साल हो चुका है, हुआ नहीं है। कांग्रेस जब आएगी दिल्ली में इस बार, यहां में बॉर्डर हाट जो पहले से सैंक्शन किया था वो होगा। शिक्षा, हां, बहुत लोग मदरसे में पढ़ते हैं, बहुत लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन
अगर मुसलमान समाज को आगे बढ़ना है, अगर यहां के जो युवक हैं उनको दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जाकर उनको नौकरी करना है, तो उनको शिक्षा अंग्रेजी, ये मैं जानता हूं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। लेकिन भाषा, अगर आज आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप आज स्कूल में जाते हैं, अगर आपकी भाषा उर्दू तो है, बांग्ला तो है, लेकिन अंग्रेजी भी आ जाए तो आपके लिए सुविधा होगी। मैं जानता हूं कि यहां में स्कूल अंग्रेजी मीडियम स्कूल बहुत है, लेकिन कितनी दुख की बात है कि इंग्लिश मीडियम कॉलेज यहां में नहीं आया है। दिलजीत बाबू, आप यहां के एमएलए हैं, मैं जानता हूं कि दिलजीत बाबू के दिल में ये बात है, और मैं आपको वादा देता हूं कि इस कैलाश शहर में अंग्रेजी मीडियम कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे युवक जो कलकत्ता में जाए, बॉम्बे में जाए, हैदराबाद में जाए, बेंगलोर में जाए, उनको एक अवसर मिले अपने जिंदगी को बनाने के लिए और अपने मां बाप को वही सुविधा देने के लिए। मैं आपसे 3 या 4 चीज और कहना चाहता हूं। मोदी जी कहते हैं कि मेरे ऊपर हमला होता है, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मुझसे पहले अध्यक्ष थे दिलजीत बाबू। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मेरा परिवार, मेरी मां राजमाता बेबी कुमारी देवी दिलजीत सिन्हा को खुद का अपना बच्चा मानती है। ये है हमारा एक संबंध दिलजीत बाबू के साथ। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, मैं भी जानता हूं कि आज मैं कांग्रेस अध्यक्ष हूं, पूरी जिंदगी नहीं रहूंगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल के बाद मैं भी हटूंगा। मैं चाहता हूं कि जिस दिन मैं हटूं, एक महिला हो या कोई माइनॉरिटी से हो जो मेरा जगह ले, क्योंकि ये त्रिपुरा सिर्फ एक समाज का नहीं, पूरा समाज का होना चाहिए। आप अपने अंदर से एक ऐसा लीडर तैयार कीजिए। मैं प्रद्युत विक्रमादित्य देववर्मा आपको आश्वासन देता हूं कि आपके बीच से कोई लीडर निकलेगा तो हम आपको आज ऊपर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जो बोलता हूं सच बोलता हूं। ये बहुत कॉम्युनल है। अशोक सिन्हा जी कांग्रेस में थे एक समय, आज बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, बोलते हैं कि प्रद्युत विक्रमादित्य देववर्मा सांप्रदायिक बात करता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि नहीं? 13 साल तक थे। 13 साल में नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे? मेरे गुजरात में भाइयों बहनों, मैंने ये किया, मेरे गुजरात में, जहां पे जाओ आप YouTube में वीडियो देख लो, मेरे गुजरात में। आज जब चीन का राष्ट्रपति आता है तो मोदी जी उनको ले जाते हैं गुजरात। जापान का प्राइम मिनिस्टर आता है, मोदी जी ले जाते हैं गुजरात। यहां तक बराक ओबामा, मेरा मित्र बराक, उनको आप ले जाते हैं अहमदाबाद, झूले में झूलते हैं, चाय पिलाते हैं। आज अनिल अंबानी है गुजरात, अमित शाह है बीजेपी का प्रेसिडेंट गुजरात, आरबीआई गवर्नर था गुजरात, सीबीआई डायरेक्टर है गुजरात काडर। यहां तक जो बुलेट ट्रेन का बारे बात कर रहे हैं ना, वो भुर्र करके बुलेट ट्रेन जाएगा, बॉम्बे से गुजरात जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये उनका प्लान है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के बारे में बात कर सकते हैं, बीजेपी में एक अपने बहुत मशहूर कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा,
गोपाल बाबू जानते, उनका दोस्त है, एक समय बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में है, बीजेपी के मंत्री भी रह चुके हैं। क्या कहता था शत्रुघ्न सिन्हा? खामोश, वो तो कहता था, लेकिन ये भी कहता था, मैं बिहार का हूं, बिहारी साधु हो बोलता था। हाँ कहता, अपना लल्लू के सामने अरे बिहार का हो, बिहार का हो, पटना का हो, बिहार का हो बोलते रहता है, किसी को आपत्ति नहीं। आप आसाम का जो मुख्यमंत्री है बीजेपी का, अपने आप को कहता है जातीय नायक, जाति का नायक, किसी को आपत्ति नहीं है। ये अपना ममता बनर्जी, मां, माटी, मानुष, मानुष में मुसलमान है, गोरखा है, बिहारी है, कोई नहीं पूछता। अमिताभ बच्चन क्या बोलता है? 50 साल से फिल्म में है, लेकिन खुले सीने से कहता है मैं छोड़ा गंगा किनारे वाला आई, बोलता है उत्तम प्रदेश में आया मैं, बोलता। जब ये लोग नरेंद्र भाई मोदी, ममता बनर्जी, सर्बानंद सोनोवाल, सब लोग अपने राज्य के बारे बोल सकते हैं, तो प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन त्रिपुरा के बारे क्यों नहीं बोल सकता है? उनका खून खून है, हमारा खून पानी है। लगता है दिल में, जब आप उंगली उठाते हो और कहते हो प्रमाण दो, आप हिंदू, आता हूं, आप प्रमाण लेके आइए, आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था या कहीं और में? हर समय हर वक्त आप पूछते हैं, आप देखते हैं दीन में, आप देखते हैं हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे मजहब में। अरे मोदी जी, पग में मैं क्या कहता हूं? नरेंद्र मोदी नुंगुबाग्रानो सिनी आंखों, उसका मतलब क्या है? आप प्रद्योत को समझ नहीं सके, पैसा फेंको, लालच दो, पद दो। यहां में 3 लोग हैं जिसने खराब दिन में कांग्रेस को नहीं छोड़ा, आज कांग्रेस वापस आने वाली है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप झुकिए मत, मत झुकिए, मत डरिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां में माफिया है, मस्तान है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इन गुंडे के सामने, बीजेपी के सामने झुकिए मत। अगर झुकना है तो अल्लाह के सामने झुको, वो तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। मैं जानता हूं कि ये त्रिपुरा राज्य का एक आइन क्या है। आप हमको सिखाना चाहते हैं, आप डराना चाहते हैं, आपको लगता है कि 4-5 गुंडे को आपने भेज दिया, आपको लगता है कि प्रशासन आपका है। अरे भाई, प्रशासन आपका हो सकता है, सीपीएम का भी 25 साल तक था। एक नारा था आज से 1 साल पहले, चलो पलटाए। आज पूरे त्रिपुरा में एक नारा है, चलो और एक मैं बात कहना चाहता हूं। आज सवेरे मैंने सुना, हमारे महाराष्ट्र के एक प्रभारी है जो बीजेपी के इंचार्ज हैं, नाम है मिस कॉल बाबा। मिस कॉल बाबा, वो यूट्यूब में मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि मेरी बहन तो भूमि पुत्र नहीं है, भूमि से नहीं है, वो तो बाहर से आती है, उनको क्यों एमपी बनाए? बाहर से कौन आता है देवधर जी? मैं आपको अगर 18 तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, 1 वे टिकट आपको महाराष्ट्र भेजकर प्रद्योत माणिक्य देव बर्मा दिखाएगा। ये त्रिपुरा है। आप
हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए कि त्रिपुरा का कौन है और त्रिपुरा का बाहर कौन, क्योंकि अगर मैं सर्टिफिकेट देने लगूं तो हमारे एमएलए, आपके एमएलए, आपके मंत्री बहुत खतरे में पड़ने वाले हैं। आप कांच के घर में रहते हो, दूसरे के घर में पत्थर मत फेंको, खुद का शीशा टूट जाएगा, शर्म आएगा आपको। प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा को चेतावनी मत दो। आप लोग सब है मेरे साथ, मैं जानता हूं आप सब है मेरे साथ। विप्लव देव, दूसरी तरफ है कांग्रेस और प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उम्र कम होगा लेकिन जज्बा है, जोश है, और आपके लिए लड़ूंगा। अकेला हूं तभी भी लड़ूंगा, आप लड़िए मत। और सर झुकता नहीं है किसी के सामने से, झुकेगा तो परवरदिगार के सामने। ये लोग कौन होते हैं? आज का एमएलए, आज का मंत्री। आप देखें 2019-23 मई के बाद क्या होने वाला। अगर 18 तारीख को आप डरे, आप चुप रहे, तो पूरी जिंदगी आपको चुप रहकर दहशत भी घर में रहना पड़ेगा। डरिए मत, मैं आपको गारंटी देता हूं। अजीत बाबू है यहाँ में, बदरुज्जमान है, पूरा कांग्रेस पार्टी कैलाश शहर का आपके साथ खड़ा है। और जवाब हम देना जानते हैं, दहशतगर्दी नहीं करेंगे, हम वायलेंस नहीं करेंगे। आप जाइए, किसी के दुकान के सामने होगा बीजेपी का झंडा, किसी के सामने होगा मोटरसाइकिल में बीजेपी का झंडा, लेकिन दिल से सब है कांग्रेस। आप जाइए, अकेला हो, जो भी हो, आप जाइए। आखिर में जब आप रहेंगे और ईवीएम बूथ, तो 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आप आंख बंद करके त्रिपुरा के बारे सोचिए। उस त्रिपुरा के बारे जहां में हिंदू है, मुसलमान है, इंडिजिनस पीपरासाज है, चकमास है, हलाम्स है, सब है। उनके बारे सोचिए और बटन दबाइए। मैं गारंटी करता हूं कि आपका वोट कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा। खामोशी कुछ और होती है, और आप खामोश हैं, लेकिन आपका वोट, आप सीपीएम रेस में नहीं है। जितेंद्र बाबू घर में बैठ चुके हैं। आपका वोट नरेंद्र मोदी को एक मैसेज भेजेगा, ये है त्रिपुरा। आप दिल्ली से किसी को भेजकर हमको बता नहीं सकते कि त्रिपुरा के लिए क्या करना है। कैलाश शहर से आवाज जाएगा दिल्ली को, और एक मैसेज होगा, एक पैगाम होगा कि ये त्रिपुरा बीजेपी के सरकार को जमीन से उखाड़ के फेंक देगी। यही मैं कहकर मैं सबका शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं। आप बहुत दूर से आए, बहुत देर तक आप हमारा इंतजार किया आपने। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं दिल से, सिर्फ भाषण से नहीं, दिल से आपको प्यार करता हूं। आने वाले दिन में जब चुनाव खत्म होगा, 18 तारीख के बाद चुनाव खत्म है, मैं यहां आकर बदरुज्जमान जी के साथ, यहां में जो भी है, आपके साथ एक पूरा दिन बिताना चाहता हूं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम भाषण दिया उसके बाद चले गए, वैसा नहीं होगा। मैं आपके साथ हूं, आप हमारे साथ रहिए और एक करारा जवाब दीजिए।